उसको कहते हैं। ये दो तरह के एक तो फ्लैटी हेलमेट, फ्लैटी मतलब चपटा, फ्लैट बॉक्स, बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, जिसमें टीनिया सोलियम पढ़ता है। और ये है नीमैट हेलमेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्क हेलमेट। नीमा मीन्स होता है थ्रेड लाइन, धागे के जैसा लंबा। नीमा NEMA, नीमा मीन्स थ्रेड लाइन, धागे के जैसा। The body is elongated, thin, and thread-like in appearance. That's why it is called Nemat helmet. It is also called Ask helmet. Ask means होता है round, ASC, Ask helmet. Ask means round. Body अगर cylindrical है, body अगर इसका cylindrical है, तो जब सेक्शन काटेंगे तो सेक्शन होगा राउंड। जैसे मान लीजिए सिलिंड्रिकल बॉडी है, जब इसका सेक्शन काटेंगे तो सेक्शन इज राउंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राउंड फॉर्म। So this Ascaris lambricoid, which is also called roundworm, belongs to the phylum Nemathelminth. Nema for thread-like, धागे के जैसा। Body is elongated, cylindrical, thread-like in appearance. और इसको एस्क हेलमेट भी कहते हैं, बिकॉज़ जब सेक्शन हम लोग काटेंगे ट्रांसफर सेक्शन तो ये राउंड होगा, दैट्स व्हाई कॉल्ड राउंडवर्म। यस सर। Ascaris lambricoids are the parasites in a small intestine of human. Human के small intestine में, छोटी आंत में पाया जाता है। Small intestine में 3 पार्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। Anterior part is duodenum, middle part is jejunum, and the posterior longer region is ileum. Ileum के बाद large intestine होता है colon और फिर rectum। तो ये small intestine का parasite है। It is present in a small intestine। और habit और habitat देखें तो habitat तो हो गया endoparasite in a small intestine of human। और अगर habit देखेंगे तो it feeds upon the semi-digested food as well as the whole blood of human। बहुत पहले इस पे CBSE मेडिकल में एक बार क्वेश्चन आया था, होता है कि the Ascaris feeds upon और ऑप्शन में था whole blood। तो सब लोग इसमें परेशान हो गए थे, क्योंकि यही पढ़ा जाता है या सुना जाता है कि Ascaris semi-digested food को एब्जॉर्ब करता है या लेता है from the small intestine of human। तो semi-digested food उसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर पूरा डाइजेशन होता है इसके एलिमेंट्री canal। लेकिन इसके साथ साथ it also feeds upon the whole blood। Ascaris जब small intestine के वॉल से यानी म्यूकोसा से जब अटैच होता है तो म्यूकोसा को डैमेज करता है, वहाँ से ब्लीडिंग भी होता है, उस पर भी फीड करता है। So that's why it feeds upon both semi-digested food present in a small intestine of human as well as the whole blood। Now, when we consider the morphology, अगर हम लोग इसके external feature को देखते हैं, तो आप बोर्ड पर भी देखिएगा sexual dimorphism established। Sexual dimorphism, di means two, morpho तो आप जानते हैं external feature का है। So when you can differentiate the male and female externally from each other, you can differentiate male and female from each other from outside, condition is called sexual dimorphism। मेल और फीमेल को बाहर से अलग अलग पहचान लेते हैं। यहाँ डायग्राम में देखिए, फीमेल बड़ा होता है, ये फीमेल है, the female is longer about 20 to 40 centimeter in length and the diameter of body is about 6 to 10 millimeter। तो 20 से 40 सेंटीमीटर लंबा है, 20 to 40 सेंटीमीटर in length। और अगर इसको देखें Ascaris को, तो sexual dimorphism well developed है। You can differentiate male and females from each other externally। यहाँ पे female को देखें तो female is much more longer as well as straighter।
फीमेल की लंबाई ज्यादा है, लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है फीमेल का शरीर, और इसका डायमीटर होता है 6 to 10 मिलीमीटर, whereas the male is shorter, मेल छोटा होता है, 15 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और इसका डायमीटर होता है 3 to 4 millimeter. So female is much more longer as well as the straighter, 20 to 40 centimeter in length and 6 to 10 millimeter in diameter, whereas the male is shorter, 15 to 30 centimeter in length and the diameter is 3 to 4 millimeter. Apart from that, the posterior part of the male is somewhat curved. ये जो मेल का पीछे वाला हिस्सा है आप देखिएगा थोड़ा कर्व्ड है, जबकि फीमेल में स्ट्रेट है, और इट कंटेन्स वन पेयर ऑफ पीनियल सीटी. ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वन पेयर, ये पीनियल सीटी है. पीनियल सीटी हेल्प इन ओपनिंग ऑफ द फीमेल जेनिटल एपर्चर ड्यूरिंग कॉपुलेशन और मैटिंग. मैटिंग के समय में ये जो पीनियल सीटी है मेल का, ये फीमेल जेनिटल एपर्चर को खोलता है to release the sperm into the female genital system. आप देखिए ये हम लोग वेंट्रल साइड का देख रहे हैं डायग्राम, जैसे एस्करिस का ये डॉर्सल साइड है इधर वाला, तो ये वेंट्रल साइड है. वेंट्रल साइड में ये डॉटेड लाइन देखिए है, इट इंडिकेट्स द मिड वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, यानी वेंट्रल साइड में बीचों बीच एंटीरियर से पोस्टीरियर रीजन तक ये मिड वेंट्रल साइड है बॉडी का. यहाँ देखिए ससुर मेरा भी नहीं बंद हो गया भाई. माउथ से 2 सेंटीमीटर नीचे, माउथ से 2 सेंटीमीटर नीचे यहाँ एक एपर्चर है which is excretory pore. excretory pore यानी यहाँ उससे मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करेगा. और इसी तरह पोस्टीरियर एंड, ये पोस्टीरियर एंड है, इससे 2 सेंटीमीटर पहले ये फीमेल ये जेनिटल एपर्चर है, ये फीमेल जेनिटल एपर्चर, सॉरी इट इज द एनस. इसके ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इट इज एनस. एनस का पोजीशन होता है सब टर्मिनल. सब टर्मिनल यानी नॉट इन द टर्मिनल पोजीशन. माउथ इज टर्मिनल whereas एनस इज सब टर्मिनल. पीछे वाले हिस्सा से 2 सेंटीमीटर पहले ही खुलता है. और इसलिए पर हम लोग बात कर रहे थे डायवर्सिटी में, ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान इज इनकम्प्लीट इन केस ऑफ एस्करिस. ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होगा, मान लीजिए कि ये शरीर है, तो इसके अंदर का कैविटी हो गया सीलोम, दिस बॉडी कैविटी इज सीलोम. अब यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई में, यहाँ पे माउथ है और यहाँ पे एनस है. तो आप कहीं से भी सेक्शन काटिएगा तो आपको ये सीलोम दिखेगा, और सीलोम के अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल, तो लगता है एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के अंदर है. दैट्स व्हाई बॉडी प्लान इज कंसीडर्ड एज ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान. लेकिन अगर आप एस्करिस को देखिए जिसका एनएस सब टर्मिनल पोजीशन पे है, यानी यहाँ पे है, तो आप देखिएगा यहाँ से जब सेक्शन काटेंगे ये मिलेगा, लेकिन जब नीचे वाले पोर्शन का सेक्शन काटेंगे तो सिर्फ यहाँ पे सीलोम मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल हिसाब से. तो ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान इज कंप्लीट ओनली when both mouth and anus are terminal in position. In case of ascaris, the anus is subterminal, 2 centimeters above the posterior end. Anyway, तो आप देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, ये बाहर से पता चल रहा है ये फीमेल और ये मेल. अब आपके असाइनमेंट में तो सब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम समझा. अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखिए तो ascaris is endoparasite in small intestine, और आगे डाइजेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड as well as the absorption of digested food occurs within the small intestine. यानी
डाइजेशन का सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, और डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो हम लोग हर चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, चिकन मटन जो भी आप खाइए आसानी से डाइजेशन हो जाता है। इसका कारण है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग पढ़ेंगे इंटेस्टिनल जूस, जिसको सबकस इंटेलिकस कहते हैं, और दूसरा पढ़ेंगे पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से रिलीज होता है। इनमें तीनों तरह के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएजेस यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, एमाइलेजेस जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, या फिर लाइपेजेस फैट को। तो हर चीज डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ भी खाते हैं। तो मामला ये है कि जब सब कुछ डाइजेस्ट होता है तो ये जो एस्केरिस है इसका बॉडी भी तो सेल और टिश्यू का बना हुआ है, तो ये अगर हम लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ तो इसका डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर क्यों नहीं असर कर रहा? तो इसका एक सिंपल कारण है कि बॉडी इज कवर्ड बाय एंजाइम रेसिस्टेंट क्यूटिकल। ये जो आप बॉडी के बाहर वाला हिस्सा देखते हैं, ये सबसे बाहर की ओर चारों तरफ से इसको घेरा हुआ एक टफ स्ट्रक्चर होता है क्यूटिकल, व्हिच इज एंजाइम रेसिस्टेंट, यानी इसके ऊपर किसी एंजाइम का एक्शन नहीं होता है, इसलिए ये लंबे समय तक पड़ा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आसपास फूड का डाइजेशन जारी है पर इसका बॉडी का डाइजेशन नहीं होता है। इसका जो क्यूटिकल है इट्स forms the syncytial epidermis। जैसे अगर देखें, ये मान लीजिए कि ये क्यूटिकल है, जैसे तो क्यूटिकल फॉर्म करता है syncytial epidermis। अब ये टर्म आया है syncytial, टिश्यू में बताया था। मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, बगल में दूसरा सेल है, इसका भी न्यूक्लियस है, ये तीसरा सेल है, इसका भी न्यूक्लियस है। लेकिन अगर इन सेल्स के बीच का साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्लियर नहीं है तो लगता है कि इट इज अ कंटीन्यूअस सेल कंटेनिंग सेवरल न्यूक्लियाई। अगर सेल के बीच का पार्टीशन डेवलप नहीं है तो लगता है कि एक सिंगल सेल है जिसके अंदर कई न्यूक्लियाई हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिंसाइसियो। एसेप्टेट के एसेप्टेट ए मींस नहीं है, सेप्टा यानी पार्टीशन, सेल के बीच पार्टीशन डेवलप नहीं है तो एसेप्टेट का। तो यहाँ जो ये क्यूटिकल है इट सिंथेसाइजेस एंड सेक्रेट द सिंसाइशियल एपिडर्मिस। इसका जो एपिडर्मिस है बॉडी वॉल वो सिंसाइशियल है। अब इसके अंदर बॉडी वॉल में मसल्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और एक चीज बराबर ध्यान में रखिएगा कि जैसे ये शरीर है, अगर किसी बॉडी का यहाँ पे लंबाई में पूरे लेंथ में जो मसल है फाइबर्स हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल मसल कहेंगे, और इसके चारों ओर सराउंड करता हुआ जैसे ऐसे घेरता हुआ ये मसल फाइबर इसको सर्कुलर कहते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया और ये सर्कुलर हो गया। जहाँ भी सर्कुलर मसल वेल डेवलप्ड होगा, जहाँ भी सर्कुलर मसल काफी विकसित होता है वहाँ बॉडी का लेंथ वेरिएबल होता है। जैसे अगर ये सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बॉडी की लंबाई बढ़ जाएगी, और जब रिलैक्स करेगा तो बॉडी छोटा और मोटा हो जाएगा। जैसे लीच में हम लोग देखते हैं, लीच जो साइनोवोरस है, तो लीचेस का बॉडी देखिएगा छोटा और मोटा हो गया और फिर बॉडी को लंबा कर लेगा और पतला हो जाएगा ड्यू टू द डेवलप्ड सर्कुलर मसल। लेकिन in all those worms where the longitudinal muscles are well developed in the body wall, the body length remains the same. It is never variable. इसलिए तो हम लोग लेंथ कह रहे हैं कि 15 से 30 या 20 से 40, तो बॉडी लेंथ में चेंज नहीं होगा। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं दीज आर अरेंज्ड इन 4 बंडल्स। ये 4 बंडल होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का। वन डॉर्सल, यहाँ देखिए ये डॉर्सल है, 1 वेंट्रल एंड 2 लैटरल्स, एक इस साइड में और एक इस साइड में। अगर इसको एस्केरिस का शरीर मान लें तो एक डॉर्सल साइड में पीठ वाले हिस्से में, एक पेट वाले हिस्से में वेंट्रल साइड में, और 2 लैटरल साइड में। एंड ड्यू टू द 4 bundles of longitudinal muscles, the body length is fixed. Now हम लोग एक चीज बराबर डिस्कस करते हैं कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सब में नन और डेज
डॉर्सल इन पोजीशन। कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड का पोजीशन डॉर्सल होता है और इसका आगे वाला हिस्सा ब्रेन बनता है। बट इन ऑल द इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, सब में नर्व कॉर्ड का पोजीशन मिड वेंट्रल साइड है, पेट वाले हिस्से में। हम लोगों में पीठ वाला हिस्सा डॉर्सल साइड और इनवर्टिब्रेट में वेंट्रल साइड, पेट वाले हिस्से में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का। नर्व कॉर्ड is always dorsal in position in all the chordates and ventral in position in all the non-chordates. But here in Ascaris, although it is a non-chordate, the nerve cord is both dorsal and ventral in position. Yes. Non-chordate है तो इसमें nerve cord होना चाहिए ventral side में, लेकिन यहाँ पे डॉर्सल भी है, वेंट्रल भी है और लैटरल भी है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन या अपवाद मान सकते हैं एनिमल फिंगर। ये तो हम लोग कह सकते हैं कि नर्व कॉर्ड इज ऑलवेज डॉर्सल इन पोजीशन इन कॉर्डेट एंड ऑलवेज पोजीशन ऑन कॉर्डेट, उसका एक्सेप्शन। In spite of being a non-chordate, the nerve cord is both dorsal and ventral in position. And alimentary canal is incomplete; it is not well developed. That's why ये food को पूरा digest नहीं कर सकता है। तो it feeds upon semi-digested food. ये semi-digested food लेता है अपने host के body से और उसको digest कर लेता है। और इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि ये sexes separate हैं। These are endoparasites present in a small intestine of human, or these are ovoviviparous. Ovoviviparous कहने का मतलब है कि after mating के बाद female embryo को release करती है। Embryo को जब use करेगा तो it is the developing stage. एक में sperm जाएगा, fertilization हो गया, बन जाएगा zygote। अब जाइगोट में जब डिवीजन शुरू होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे और उसके साथ डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो जो डेवलपिंग स्टेज है उसको कहते हैं एम्ब्रियो। तो यहाँ पे जब फीमेल मैटिंग के बाद मेल और फीमेल परफॉर्म मैटिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही मैटिंग होता है। तो मैटिंग के बाद फीमेल काफी ज्यादा संख्या में embryonated eggs produce करती है। That's why these are called ovoviviparous. Ovoviviparous कहने का मतलब है कि incomplete vivipary, पूरा डेवलप बच्चा जन्म नहीं ले रहा, बच्चा जन्म के समय विकसित नहीं है, वो डेवलपिंग स्टेज है। That's why condition is called ovoviviparous. अगर सिर्फ egg रिलीज करता तो हम लोग कहते हैं oviparous, अगर बच्चे को जन्म देता तो कहते हैं viviparous। लेकिन यहाँ तो डेवलपिंग स्टेज हो रहा है, ना वो ओवम है ना पूरा डेवलप्ड स्टेज है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ओवोविविपेरस। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसका लाइफ साइकिल देखें। लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। तो एस्केरिक्स और राउंडवॉर्म, एस्केरिक्स लम्ब्रिक्वाइड इज मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक यानी लाइफ साइकिल, मोनो मींस सिंगल, जेनेसिस फॉर रिप्रोडक्शन। तो लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन सिंगल होस्ट एंड दैट होस्ट इज ह्यूमन। वो बार-बार कह रहे हैं कि इट इज द एंडोपैरासाइट इन अ स्मॉल। तो ह्यूमन अकेला होस्ट है, इट इज मोनोजेनेटिक। इसके पहले टीनिया पढ़ा था हम लोगों ने, या पुचेरेरिया पैनक्रोप्टिक फाइलेरिया वर्म पढ़ा था, तो दे वर डाइजेनेटिक। दो होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट। अब देखिए यहाँ से लाइफ साइकिल को, यहाँ पे देखिए गट है, एलिमेंट्री कैनाल है ह्यूमन का, और ह्यूमन का ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ऐसे यहाँ से बना दिया, इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, गट लिख दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों तरह के पैरासाइट्स मौजूद, ये मेल है और ये फीमेल। So male and female parasites present in a small intestine of human perform sexual reproduction. They perform mating. अब mating होगा तो उसके बाद फीमेल काफी ज्यादा संख्या में इस तरह का एग रिलीज करती है, जिसको हमने यहाँ लिखा है embryonated shed eggs. Shed कहने का मतलब है
इसके बाहर आप देखिएगा एक हार्ड कवर है, ऐसे बना दिया है, ये हार्ड कवर है, शेल कहते हैं, जैसे ची कवर है, शेल ऐसे कैसे अंडर में करना होता है, मुर्गी का अंडा वैसे ही हार्ड कवर, तो इसको सेल कर और ये एम्ब्रियो। तो लार्ज नंबर ऑफ embryonated shelled eggs are released along with the fecal matter of human into the soil. अगर ओपन डिफिकेशन हो रहा है तो जो पर्सन इन्फेक्टेड है, जिसको एस्केरियोसिस है, जिसके इंटेस्टाइन में मेल और फीमेल पैरासाइट रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ पे फीमेल काफी ज्यादा संख्या में ऐसे एम्ब्रियो को रिलीज करती है जिसके बाहर यहाँ पे कवर है, शेल है, हार्ड शेल है। ये फीकल मैटर के साथ रिलीज हो गया ह्यूमन का और पड़ा हुआ है स्वाइन, या प्रेजेंट इन द स्वाइन। विदिन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर, आप देखिए कुछ ही दिनों के अंदर ये जो एम्ब्रियो है, इट डेवलप्स इनटू फर्स्ट स्टेज लार्वा। ये और डेवलप होगा तो इट विल डेवलप इनटू लार्वा। ये डेवलप हो गया लार्वा, तो इट इज द फर्स्ट स्टेज लार्वा। फर्स्ट स्टेज लार्वा भी जमीन पर पड़ा हुआ है, जमीन पर मिट्टी में पड़ा हुआ फर्स्ट स्टेज। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट स्टेज लार्वा में फर्स्ट चेंज आता है, और जो डेवलपिंग स्टेज है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं माउंट। माउंट को कहते हैं फेज ऑफ ग्रोथ। जैसे एक माउंट हुआ तो थोड़ा और डेवलप कर गया, फिर उसमें दूसरा माउंट हुआ, दूसरा फेज ऑफ ग्रोथ तो और विकसित हुआ, फिर तीसरा माउंट हुआ, और इस तरह से वो डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियोनेटेड शेल्ड एग था, ये पहले डेवलप हो गया फर्स्ट स्टेज लार्वा में, और फिर इस फर्स्ट स्टेज लार्वा में अब पहला माउंट हुआ, माउंट यानी फेज ऑफ ग्रोथ, एंड इट डेवलप्ड इनटू सेकंड स्टेज लार्वा, जिसको हम लोग रैपिडिफॉर्म लार्वा कहते हैं। सेकंड स्टेज लार्वा इज कॉल्ड रैपिडिफॉर्म लार्वा, और इस पर तो नीट में भी क्वेश्चन आया है कि द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरियोसिस, एंड आंसर इज रैपिडिफॉर्म लार्वा। रैपिडिफॉर्म रैपिड जैसे करते हैं, मुक्कर के जैसा क्लब शेप, आगे की ओर चौड़ा और पीछे की ओर मतलब वैसा शेप होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैपिडिफॉर्म लार्वा, इन्फेक्टिव स्टेज लार्वा। इसके बाद देखिए शेल है, तो सेकंड स्टेज लार्वा रिमेन इन द सॉइल, ये सॉइल में ही मौजूद है। अब अगर कंटामिनेटेड फूड या वाटर के साथ, कंटामिनेटेड यानी इन्फेक्टेड फूड और वाटर के साथ कोई ह्यूमन इसको इंजेस्ट कर ले, ये सेकंड स्टेज लार्वा कंटामिनेटेड फूड और वाटर के साथ ह्यूमन फूड और वाटर के साथ इंटर कर गया ह्यूमन के स्टमक, और स्टमक में यहाँ पे इसका जो शेल है वो ब्रेक कर दिया गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये सेकंड स्टेज लार्वा फ्री हो, अभी तक तो शेल के अंदर था, अब ये फ्री हो गया, और फ्री होने के बाद इट पेनिट्रेट्स द म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोग जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल का इनर लेयर होता है म्यूकोसा, उसको पेनिट्रेट कर छेद करके चला जाता है ब्लड सर्कुलेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जानते भी होंगे, कोई भी ब्लड एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी हिस्से से, यानी हम लोगों का जो आहार नाल है एलिमेंट्री कैनाल, उसके किसी भी हिस्से से जब ब्लड मूव करता है तो वो सीधा पहुंचता है लीवर। इस कंडीशन को कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ा है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम कहा जाता है व्हेन अ लार्ज वेन, बड़ा सा वेन passes through an interposing organ and branches into capillaries before entering into the heart. It is called portal vein. The organ in which it is dividing into capillary is called portal organ, and the whole arrangement is called portal system. Portal system. जैसे मान लीजिए ये कोई वेन है, और हम लोग जानते हैं कि आर्टरी और वेन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है
कि आर्टरी आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर ले हार्ट जाता से है दूर ले और जाता वेन की ओर हार्ट की ओर। when the blood is moving away from the heart, the blood vessel is artery, and when the blood is moving towards the heart, the blood vessel is vein. moving ये towards large vein को वेना का away to the heart। अभी बोलना है मूव कर रहा है हार्ट में, इसको पहुंचना है इस हार्ट के, समझ लेकिन हार्ट में पहुंचने के पहले ही ये किसी ऑर्गन से गुजरता है और यहाँ पे इस ऑर्गन के अंदर ये डिवाइड कर जाता है कैपिलरी में। और हम लोग जानते हैं कि कैपिलरी के वॉल में एक ही लेयर होता है, स्क्वामस एपिथेलियम, जिससे कोई भी चीज एक्सचेंज हो जाता है और फिर ये पहुंचता है हार्ट में। तो इस ऑर्गन को कहते हैं पोर्टल ऑर्गन, इस वेन को कहते हैं पोर्टल वेन और पूरा अरेंजमेंट कहलाता है पोर्टल सिस्टम। तो ऑल द वेन्स कलेक्टिंग ब्लड from the different parts of alimentary canal ultimately release the blood into the liver. यानी liver collects blood from different parts of the alimentary canal. तो हम लोग फूड भी जो लेते हैं तो पहले जो भी चीज खाते हैं डाइजेशन होता है तो पहले पहुंचता है लीवर में और फिर लीवर उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन और फिर जितना रिलीज करना जितना सप्लाई करना आपको जाने देगा, बाकी को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो लीवर तो बहुत सारा काम है, मास्टर लेबोरेटरी है, एक दो काम तो नहीं है इसका। तो ये पहुंच गया हेपाटिक पोर्टल देखे, फिर से देखे ये ब्रेक कर दिया इसका शेल, तो ये लार्वा रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद ये पहुंच गया लीवर में। एक मिनट ब्रेक करते हैं।